ہر سطح سے ہو رہا ہے، یعنی حکومتی سرکل جو ہیں وہ بھی زائنسٹ انفلوئنس میں ہیں، اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ ہیں۔ پاکستان میں جو ٹرانسجنڈر کا بل پاس کیا گیا 2018 میں، آپ یاد رکھیں 2018 میں ٹرانسجنڈر کا بل آف رائٹس پاس کیا گیا، جس میں ایل جی بی ٹی والوں کو حقوق دے دیے گئے، اتنے زیادہ حقوق کہ میں نے تو یہ پروفیسر صاحب جانتے ہیں ایکس، میں نے اس کے اوپر ادھر ٹویٹر پہ سپیسز کی ہوئی ہیں، اور ہم نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ آپ اگر انگلینڈ میں ہیں، یو کے میں، تو آپ کا جنڈر تبدیل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کا جنڈر تبدیل کرنا پیس آف کیک ہے۔ اپنا شناختی کارڈ لے لیں نادرا کے دفتر، ابھی فارم فل کریں نئے شناختی کارڈ کے نہیں یہ لیے۔ ہو گیا ہے اپنا، اس پہ عمل درآمد ہو گئے اپنا ابراہیم بھائی، مجھے 100% انفارمیشن نہیں ہے، میں نے سنا تھا جی یہ، جی، مطلب ابھی کہہ رہے ابھی میں نے نہیں ابھی نہیں، سنا عمل تھا لاسٹ درآمد ٹائم یہ اب 2000 ہاں جی جی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پارٹ آف لا بن چکا ہے۔ یہ جو تھی نا اچھا شاید خاقان عباسی والی جو جب وہ وزیر اعظم تھا، اس نے اپنے آخری مہینے میں، وہ وزیر اعظم تھا، اس کی آخری اسمبلی جو ہاں تھی ہاں آخری مہینے میں اس نے پاس کیا تھا یہ بل 2018 میں۔ اچھا تو یہ اچھا اس وقت سے قانون، اس وقت سے یہ لا بن چکا ہے۔ اس کو چیلنج کیا تھا اوریہ مقبول جان نے اور جماعت اسلامی کے سینیٹر اوکے مشتاق احمد صاحب نے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا، انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل میں، شریعت کورٹ میں رادر۔ اچھا 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 تو اور پھر سپریم کورٹ میں بھی، لیکن اس وقت یہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ میٹر میں چل ڈالا ہوا ہے۔ وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ پاس ہو چکا ہے کہ یہ ان اسلامک ہے، لیکن اس کو چیلنج وہاں پہ سپریم کورٹ میں کیا گیا ہے، اور وہاں پہ اس وقت وہ پینڈنگ حالت میں، اور جب تک سپریم کورٹ میں کوئی بھی لیجسلیٹو بل جو ہے وہ پینڈنگ میٹر میں ہو، اس وقت وہ پاس ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس وقت وہ لا ہے، اوور ٹرن نہیں کیا گیا۔ تو اور سپریم کورٹ میں وہ کتنا عرصہ رہے گا، اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے سود کے متعلق جو کیس سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے، وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے کا گیا ہوا ہے، اور ابھی تک وہ پینڈنگ میٹر میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے بعض کیسز سپریم کورٹ جان بوجھ کر ان کو مستقل پر پینڈنگ ڈال دیتی ہے کہ فیصلہ نہ کیا، اور اس کی جو پولیٹیکل اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ اسی فیصلے کو ڈومینیٹ کیا جاتا ہے، وہی فیصلہ ان کا ایکچولی جو چل رہا ہوتا ہے۔ اوکے 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 انہیں بھائی بات کر رہے تھے نا، تو میں اچھا دوسرے شوق ساتھی نہیں، بھی وہ آئے ہیں، ان کو بھی انہوں نے گفتگو بڑی میں شامل کریں، پتے کی اور بات عمر کی ہے۔ صاحب آئے ہیں، سدھو جاٹ صاحب آئے ہیں، اور عبداللہ بھائی آئے ہیں، ان کو بھی گفتگو میں شامل کریں، اوکے اوکے جی، باقی بات کر بھائیوں رہا کو بھی۔ ہوں۔ نہیں آپ اپنی بات پوری کریں نا وڈائر صاحب، آپ کو میں نے ٹوکا نہیں ہے، میں نے کہا اسی نہیں، لیے میں ان کی بھی وہ ریمارکس کریں، سدھو پروفیسر جاٹ صاحب صاحب کی بھی رپلائی تو جٹ صاحب ابھی بات کر چکے ہیں، وہ خاموش ہو گئے، وہ میرے میرے ہو گئی بات کمپلیٹ، اس لیے اس کے بعد ہی بات کی تھی سٹارٹ۔ پروفیسر صاحب کی جو بات تھی نا، وہ چونکہ پروفیسر صاحب اور میں ادھر ٹویٹر پر جیو پالیٹکس وغیرہ اچھا ہمارا اچھا جی فیلڈ تھا، پالیٹکس، اوکے 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 اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر اس وقت زائنسٹ ایجنڈا ہی چل رہا ہے۔ جتنے بھی مسلمان دنیا ہے، بلکہ جتنی بھی دنیا ہے، جو رشیا یا دوسرے ملکوں میں کیوبا ہے یا وینزویلا ہے یا چائنا ہے یا ایک آدھا اور ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، ان کے علاوہ پوری دنیا اس وقت زائنسٹ ایجنڈا کے نرغے میں ہے پریکٹیکلی۔ اوکے تو یہ جو ٹرانسجنڈر بل آف رائٹس کا پاکستان میں پاس ہونا، اور آپ اتنے آرام سے نادرا کے دفتر جا کے، جب میں نے پروفیسر صاحب یاد ہے جب سینیٹر مشتاق صاحب کو بلایا تھا اسپیس میں، اس وقت تک انہوں نے بتایا تھا کہ 29,000 لوگ اپنا شناختی کارڈ چینج کروا کر اپنا جنڈر بدل چکے تھے، یہ ایل جی بی ٹی والے 29,000 اس وقت تک۔ او خدا دا ناج ہے، او خدا دا ناج ہے، میرے پہلے یہ دسو کہ جو ٹرانسجنڈر جڑا تسی بل پیش کر رہے ہو تے زائنسٹ ایجنڈے نال کی تعلق ہے؟ میں وہی اس چیز تو میں وہی یہ ایجنڈا ہی زائنسٹ ہے۔ چلے نہیں عبدال بھائی اس کا بعد جواب آج کو دے تو تھوڑا سا آئی تو بس وہ نہیں اسپیکر بند کر دیں، یہ باقی جو لوگ ہیں۔ سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے ایپسٹین فائلز کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ میجورٹی اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے ایپسٹین فائل کے بارے میں تھوڑا پڑھا ہوگا۔ ان کو کیا ضرورت ہے کم عمر بچیوں کا ریپ کرنے کی، ان کو قتل کرنے کی؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پیڈو فائلز ہیں وہ زائنسٹ ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ جو تحفظ فراہم کرتا ہے وہ اسرائیل کرتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو پاکستانی
प्योडोफाइल्स हैं पाकिस्तानी प्रोवाइड करता है। दुनिया में सबसे पहली जो गे मैरिज जो रजिस्टर्ड हुई थी ना वो नेदरलैंड्स में, और दूसरी उसके बाद जो बिल पास हुआ था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आप कैसे कह सकते हैं सर वो ज़ायनिस्ट नहीं है? सुन ले, How can I say that? मुझे सर मुझे मैं आज मैं आपको प्रोफेसर साहब पूरी अच्छा एक जी, मिनट जी, प्रोफेसर सर। साहब मौका दें पहले जट साहब को अपनी बात पूरी रख लें, क्योंकि मुझे उनका पॉइंट बहुत वैलिड लग रहा है जो वो बात कर रहे हैं ना, कि इनका लिंक जो है हम कहने को तो कॉन्स्पिरेसीज बहुत सारी फैला सकते हैं, लेकिन लेट्स मेक हेल्दी डिस्कशन। जट साहब बात ऑल गुड सर, ऑल गुड, ऑल गुड। शुक्रिया अलीफा वक़्त भाई, जज़ाकल्लाह। देखें प्रोफेसर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सोशल नॉर्म्स हैं। ये अगर कोई बंदा है वो कहता है कि जी मैं बाय जेंडर ये फील कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरा राइट है, आप इसको ज़ायनिस्ट कॉन्स्पिरेसी से कैसे मिला सकते हैं? मैं उस ज़ायनिस्ट कॉन्स्पिरेसी से डिनाई नहीं कर रहा। यस, वो दुनिया में कंट्रोल करना चाहते हैं, फाइनेंशियल हब्स को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, फिर उन्होंने आपकी बायोलॉजिकल जो ग्रोथ है वो 90% उनके उसमें चलेगी। आप इस पे तो बात करें तो समझ आती है। अब ये जी क्या कहते हैं जी, वो चूंकि वो गे राइट्स दे रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहा है, फलान हो रहा है, ये आपको ये पता है कि ये जो सही जो जेन्युइन यहूदी बंदा होता कौन है? जो सेहूनी जिसको बोलते हैं, जिसकी माँ यहूदन होती है, सही है, बाप यहूदी किसी गैर लड़की से शादी कर लेना वो यहूदी नहीं होता। पहला जो गे राइट कंट्री था वो जो था नीदरलैंड्स था, फिर स्वीडन था। तो मैं थोड़ा सा इस चीज से डिसएग्री करूंगा कि इन चीजों को आप इस चीज से लिंक ना करें। पापा मैं आपका सर मैं ना देख ट्विटर में तो आप ना ओके का साइन कर देते हैं, डाउन का साइन कर देते हैं, यहाँ पे नहीं है तो मैं जरा नया हूँ यहाँ पे, मैं नॉर्मली नया नहीं हूँ मगर मैं यूज नहीं करता ट्विटर। अच्छा मैं आपको एक बात ये बता दूं कि एक होता है कि बाय बर्थ ऐसा, एक होता है कि आप उसको प्रमोट करते हैं। आपको पता है कि क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा, आप कैट बनना चाह रहे हैं तो यू परसीव लाइक अ कैट, इसको प्रमोट कर रही है एक सोच। एप्स्टीन फाइल्स में अभी जो रिसेंटली शो अप हुआ है, ज़ायनिज्म ने क्या किया है कि प्यूडोफाइलिज्म को सपोर्ट किया, तो करते आए हैं, गेज मैरिजेस को प्रमोट किया कि जी लड़का लड़का साथ सेक्स कर रहे हैं, सॉरी मुझे पता है यहाँ पे कोई खातून बैठी इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ, फीमेल फीमेल सेक्स कर रहे हैं आपस में। एक बच्चा या एक बच्ची बाय बर्थ डिसऑर्डर के अंदर है, वो उसका कसूर नहीं है। मैं इस चीज को बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ एंड आई सपोर्ट देम कि वो जो कर रहे हैं बाय बर्थ वो ठीक है, मगर एक है उसको प्रमोट करना। आपने 10 साल के बाद कहा कि मेरी तो फीलिंग ही डिफरेंट है, मैं तो लड़का पैदा हुआ था, मैं लड़की बनना चाहता हूँ। इसको प्रमोट करना ये ज़ायनिज्म के अंदर है। डिसऑर्डर क्रिएट करना, चेंज करना, अपनी क्या कहते हैं उसको, अपने जिस्म को चेंज करना, और ये पाकिस्तान में सर हो रहा है। मेरी सर 40 साल उम्र है। मैं जब 2005 में लाहौर की अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने एक फर्स्ट टाइम जब एक खातून से मिला जो लेस्बियन थी, मेरा बड़ा कश था उनके ऊपर, मैं सब बैंक में जॉब करती थी वो, तो जब मैंने उसको प्रपोज किया तो मुझे कहती मैं तो लेस्बियन हूँ, मैं वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार ये भी होता है। 2005 की बात कर रहा हूँ आपको मैं, 2025 चल रहा है यहाँ पे। तो सर इसको प्रमोट किया जा रहा है। जब हम कहते हैं ना कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, हम मुसलमान हैं, वहां पे प्रोफेसर साहब ये भी तो हो सकता है वो आपसे प्यार ना करती है, वो आपसे करना चाहती है। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है आपकी इस तरह बात यार। अब आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो ना निकलवाएं, वो उन्होंने बस जज कर लिया जो भी थी। हाँ नहीं सर, मैं कोई ट्रोलिंग के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने आपको अंदर की बात बता दी है। मसला ये है कि एक होता है बायोलॉजिकल थिंग, एक होती है कि आप उसको प्रमोट करें, और प्रमोशन जो है इन चीजों की वो सिर्फ ज़ायनिस्ट रिलीजन में नहीं है, वो रिलीजन ना एथियस्ट सॉरी ना क्रिश्चियनिटी के अंदर है, ना मुस्लिम्स के अंदर है, ना जुडाइज्म के अंदर है, वो ज़ायनिज्म के अंदर है। ज़ायनिज्म रिलीजन नहीं है, वो एक सोच है जो कंट्रोल करती है लोगों को। आप एग्री डिसएग्री बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हुए। मैं भी हर जगह पे सही नहीं हो सकता और शायद आप भी नहीं हो सकते। अच्छा इसमें थोड़ा सा प्रोफेसर साहब मैं ये कह दूं कि हर बंदे को प्रोफेसर साहब पाकिस्तान में तो
अब्दुल्ला साहब एक सेकंड, हर बंदे को अपनी अपनी ओपिनियन रखने का और देने का राइट हम दें, ये ना कहें कि तुसी यह करो या ना करो। तो इसलिए सिद्धू जट साहब मैनू समझ नहीं आई कि तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ। वैसे मैनू कुछ भी समझ नहीं आई। पाकिस्तान में और मैंने लग रहा है कि सिद्धू जट साहब ने मैंने सुने आर्मी के खिलाफ गल करता है, मैं तो बड़ा खुल के बड़ा कंट्रोल चला कर रहे हैं। तो अफजल साहब तो पता ही है वो शायद सुन रहे हैं मेरे बारे में, क्योंकि ये जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं ना, ये तो एक कर लें अब आम लेवल पे आ चुकी है ना ये क्या इन्फॉर्मेशन। क्या सारे के सारे यहूदी ज़ायनिस्ट कर लेने दो। जी अब्दुल्ला भाई आप भी कर लें बात। नहीं, तो ये एक सिर्फ क्वेश्चन एड्रेस सारे कर के दें कि सारे क्या यहूदी ज़ायनिस्ट है वो सारे नहीं है, यहूदी सारी ज़ायनिस्ट है? सारे यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं। एब्सोल्युटली नहीं। मैं आपको सर ये कहूंगा कि सर यहूदियों से अलावा सर यहूदियों से ज्यादा क्रिश्चियनिटी के लोग और इवन मुस्लिम ज्यादा ज़ायनिस्ट हैं सर। और गला करो बैक हाँ। हाँ, अब तो ये इस वाली तनाज़ुर में जो देखा जाए तो सिद्धू जट साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड नजर आता है। क्या सिद्धू जट साहब का पॉइंट है क्या वैसे? जट साहब बयान करें जी। बड़ा साहब मेरा पॉइंट ये है कि देखें, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ये प्रोफेसर साहब से कि प्रोफेसर साहब आप कभी किसी यहूदी के साथ फिजिकली कोई मिले हैं, कोई मतलब कोई खाना पीना कहीं बाहर किसी ऑफिस में कोई खाना खाने गए या कोई ऐसा कुछ है आपका कभी एक्सपीरियंस रहा है कि बस आप अपने जो बिल्कुल हुआ है और बड़ी अच्छी रिलीजियस टॉक भी हुई है। बिल्कुल हुआ है। मैं आपको बताता हूँ मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा एक कोलीग है, ठीक है, वो है यहूदी, ठीक है, इजराइल का है लेकिन यहाँ पे पैदा हुआ है। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह, मैं आपसे बिल्कुल कसम उठा के बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसको ना मैं मजाक करता होता था, मैं कहता था कि हम लोग ना पाकिस्तानी हैं और हम लोग तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे फलान करेंगे ना, तुम इस तरह कर देंगे। और मतलब एक शुगर बड़ा अच्छा कुलीग है मेरा, बड़ा अच्छा दोस्त है। तो वो ना आगे से हंसता होता था, कहता तुम लोग कर क्या रहे हो यार, तुम्हारे मुल्क में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, कभी कोई मसला आया होता है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, वो फिर रिकॉर्डिंग्स होती हैं, फिर वो लोग, मैं मतलब लफ्ज़ों को बड़ा उस तरह बयान कर रहा हूँ। मैंने सर उसके फ़ोन के अंदर अपना पाकिस्तान का कौमी तराना सुना है। एंड यू कैन आई मीन से इट कि शायद ज़िंदगी में को 5वीं 7वीं दफ़ा सुना हो, लेकिन उसके फ़ोन में सुना है। मैंने उसकी इंफॉर्मेशन इतनी अप टू डेटेड देखी है कि भाईजान उसको ये पता है कि हमारे प्रोविंस कौन से हैं, हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, हम किस पे काम कर रहे हैं। और वो इजराइल का बॉर्न नहीं था, वो नेदरलैंड्स का बॉर्न था और यहाँ पे जॉब करता था। आप जो बात पेश कर रहे हैं ना, ये एक उसको डिफरेंट, ये एक बड़ी, ये ऐसी कौम है, ये जो ज्यूइश हैं, ये तो करते ही बिजनेस हैं। अगर ये इन चक्करों में पड़ेंगे तो ये तो फिर अयाशियों में पड़ देंगे। ये सिर्फ आपको एक सोशल राइट्स देते हैं हम लोगों को खराब करने के लिए। खुद वो ऐसे नहीं है भाईजान, उन्होंने दुनिया के 90% फाइनेंशियल हब पे कब्जा किया हुआ है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, दुनिया की कोई कंपनी उठा रहे पैसा सारा जी अब्दुल्ला भाई, जो तारीख है ना यहूद की तारीख, यहूदियों ने तो अंबिया के कहने पर जंग नहीं लड़ी, तो ये आज जंग लड़ेंगे। तो मैं आपको एक और बात बताऊं, ये दुनिया में जितनी भी बायोलॉजिकल ये जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके ऊपर भी वो कब्जा करते जा रहे हैं। आप उनको इन चीजों से लिंक ना करें कि जी वो गे कल्चर प्रमोट करते हैं तो वो कहते हैं जी इस तरह कर लो। उनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है भाई। जो प्योर यहूदी हैं वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। 10 साल का उनका बच्चा होता है, वो उसको पैसे देते हैं, कहते हैं जा बिजनेस कर, पावे रेडी लगा ले। अच्छा, अब मैं जट साहब आप अंदर जो महंगे बिजनेस सारे उनके हैं। जट साहब आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। अब्दुल भाई मैं इनको जवाब देता हूँ। वो दो चीजों को, वो यहूदी और ज़ायनिज़्म से पीडोफाइल की आप पाकिस्तान की तारीख में, प्रोफेसर साहब एक मिनट बस, पाकिस्तान में जो पीडोफाइल हमने तो नहीं देखा, कोई एक ही पीडोफाइल वजीर आजम आया था और वो अभी जेल में है। अच्छा, अच्छी बात की है आपने। मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। सिंधु साहब, मैंने पहले बात की है ज़ायनिज़्म की, मैंने जीव्स की बात नहीं की। अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी सवाबदीद है, ठीक है। मेरे ख्याल में प्रोफेसर साहब अपना सिद्धू जट साहब और मैं और आप, हम नहीं वो आ सकते एक पेज पे, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव वो अभी उधर नहीं है।
वो उस ग्लोबल एक फिनोमिनन से वो फुली अवेयर ही नहीं है, क्योंकि उनकी बातों से पता चल रहा है ना, तो इसलिए उनको उसको उनके टॉपिक से मेरे ख्याल we should move on. भाई We should move on. आगे आप बात चलाएं, अगर भी भाई ने बात की है, मुझे इस पे कोई भाई ने जो बात की है मुझे इस पे कोई इशू नहीं है। और मैं आपको एक दफा कहूंगा कि कभी आप स्पेसेस में आए, क्योंकि मैं आपका मेहमान हूँ, और जब मैं आपको उस ताकत के बारे में बताना शुरू करूंगा ना जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है, तो फिर लोगों के कपड़े उतर जाएंगे यहाँ से। 4 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और अपनी तस्वीर से आता हूँ यहाँ पे। तो खैर मेरे को, कि मैं टिकटॉक में बहुत नया हूँ। बताएं कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें करके क्या मिलेगा यार? और देखें जी, ये अफजल भाई आप ये देख लें कि पाकिस्तान एनीवे, मैं क्योंकि ये रिलीजियस टॉक है यहाँ पे कोई है, मेरा ख्याल है कि हम रिलीजियस टॉक करने, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं बात कर लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। सिद्धू जट मगर भाई मैं मुझे नहीं चाहता कि आप एक मिनट दे यार। जी। मैंने 1 मिनट बात की थी तो इख्तलाफ शुरू हो गए थे। मैंने बात की इसलिए थी कि यार जब बात एक वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा नहीं है तो वहाँ ऐसी बातें करने का फायदा ही क्या है? ठीक है, तो ये बातें यहाँ डिस्कस हो रही थी कि पाकिस्तान में ज़ायनिस्ट है, पता नहीं क्या क्या है, वल्लाह आलम कौन है क्या है, कुछ नहीं है। मतलब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा हो ना तो बंदा कहे कि हाँ यार ये चीज़ें करने से हमें कुछ हासिल वसूल हो रहा है। हमारा जो मकसद है, जिस मकसद के लिए ये प्लेटफॉर्म है, उसी टॉपिक पे रहें तो बेहतर है। ऐसे ही आपस में वो क्या कहते हैं ना, बदमज़गी होगी तो फ़ायदा नहीं है। छोड़े दफ़ा इस चीज़ को। जब मैं इंटर हुआ तब ये बात हो रही थी, तो मैं इसीलिए ही ये बात मैंने की थी। टॉपिक दसो, किस टॉपिक पे बात करें? जो आप किस टॉपिक पे फायदा नहीं है इन चीज़ों का कोई। तो जिस टॉपिक ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ है कि ना भाई की बात देखो, ठीक है, कादियानी पे बात करें, सवाल छोड़ देता हूँ, उसको मैं नहीं बोलूंगा। पाकिस्तानी फौज में कादियानी से ज्यादा क्यों है सर? थैंक यू सो मच। अच्छा प्रोफेसर साहब क्या पाकिस्तानी फौज में ही सिर्फ कादियानी ज्यादा है? क्या मजिस्ट्रेट कादियानी नहीं है? क्या पुलिस ऑफिसर कादियानी नहीं है? ताकत का मम्मा पाकिस्तानी फौज है सर। तो फिर नहीं फिर सिर्फ उसको क्यों निगेट करना है, फौज को? फिर आप सब पर बात करें। और बुराई हमेशा नीचे से पहले खत्म की जाती है, ऊपर से तो नहीं कर सकते। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मेरी ना एक पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, आपको इससे एग्री या डिसएग्री करने का पूरा राइट है। लेकिन मैं इस आइडियोलॉजी के ना बड़ा सख्त खिलाफ हूँ कि फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं बाहर रहता हूँ तो मैं अपने मुल्क के अंदर कीड़े निकालने शुरू कर दूँ। वो यार मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे फ़ौज में ये मसला है, मेरे मुल्क में ये मसला है, वहाँ पे लोग रिक्शे पर ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे रेडी लगी होती है। यार अगर अल्लाह ताला ने हमें ये सादत दी है कि हम बाहर आ गए हैं या हम किसी तरह से चलें, कोई 2-4 रुपए कोई किसी से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो यार हम अपने मुल्क की तारीफ़ क्यों ना करें, हम अपने मुल्क को ऑन क्यों ना करें, हम अपने मुल्क की अच्छी चीज़ें क्यों ना दुनिया के सामने पेश करें। ये जी यार वहाँ पे ज़ायनिस्ट आ गए हैं, वहाँ पे जी वो गेज़म प्रमोट हो रहा है। मेरे भाई जिस कंट्री में जिस मुल्क में गद्दार होते हैं ना, वो देख लें क्या हालात हो रहे हैं अभी। ये तमाम ये जिन अच्छा प्रोफेसर साहब मुझे दुनिया का एक ऐसा मुल्क बताएं जिसको आर्मी या उसकी एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल नहीं करती, कोई एक मुल्क बताएं। लोग हैं सिद्धू साहब, देखें बात सिंपल सी ये है कि बड़ा वैलिड सवाल है आपका। हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। हमारी पाकिस्तान हमारा एटमी मुमालिक है और दुनिया में हमारा डंका बजता है। हमें बिजली नहीं मिलती, कोई मसला नहीं है, हमें गैस नहीं मिलती, कोई मसला नहीं है, हमारे पख्तूनों के ऊपर बमबारी करती है पाकिस्तानी यानी, कोई मसला नहीं है। मैं और आप तो पंजाब के लोग हैं, मैं और आप तो पंजाब में रहते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, मेरी फैमिली पूरी पाकिस्तान के अंदर है। अगर बलोची मर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, या मरने दो उनको। मुहाजिरों को मारा गया तो मरने दो उनको, तो फर्क नहीं पड़ता। पंजाब भाएं साड़ा ठीक चल रहा है। हाँ, पंजाब से गल्लां हो रही ने हुण, क्योंकि हुणी मुरीद के लोगों को मारे है। उन्होंने बड़ी बात की थी कादियानी के हवाले से, क्योंकि ये कादियानी अगेंस्ट देश थी। मुरीद के लोगों को भी मारा गया क्योंकि वो कादियानी के खिलाफ बात करते थे। तो एक तो ये बात होगी, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एग्री डिसएग्री बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेरे भाई ने भी सवाल किया कि दुनिया में कौन सी ऐसा मुल्क है जहां पे आर्मी या कंट्रोल नहीं है। आर्मी हर मुल्क में है,
मगर आर्मी की ब्रुटैलिटी दुनिया में अगर कहीं पे है सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि दुनिया में जितने पाकिस्तान की आर्मी ने मुसलमान मारे हैं इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान, मेरा ख्याल इंडियन आर्मी ने भी नहीं मारे होंगे। तारीख पढ़ लें, क्योंकि हम पंजाब के लोग तारीख पढ़ने से बहुत कासिर हैं। थैंक यू। कि आपके पास ना तारीख का ना जीरो। अभी ये बात कर रही है एक मिनट अब्दुल्ला भाई, आपने अब्दुल्ला भाई, एक इस मिनट पर रुकना। बहस अब्दुल्ला करनी है भाई, कि किस अब्दुल्ला मुल्क भाई, की आर्मी ने अपने लोगों यार पर ज्यादा फिर आप जुल्म लोगों किया। ने पॉलिटिक्स और ये टॉपिक खोल लिया है, वो अभी तो चेंज हुआ था, दोबारा वो जो टॉपिक चल रहा है उस पे आ जाए, जरूरी नहीं है इस पे बात करनी, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस पे। जान के चेंज हुआ है, मैं गल्ला नहीं करना चाह रहा था इससे, तो ये जान के नहीं, change वो हर ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਤੇ वो मतलब अब इधर डिस्कस करेंगे तो फिर वो माहौल खराब हो जाएगा। मेरा तो ख्याल है कि बेहतर नहीं है आगे जैसे आप मुनासिब समझते हैं करनी है कर लें, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स वाली बात की जाए। खत्म कर रहा, ठीक है। नहीं, असल में ना डॉक्टर डू साहब मसला ये है कि अगर एक बंदा जो है वो समझता है कि मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ और जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें सच्चाई है, तो उसको कुछ हकायक दिखाने भी चाहिए कि उसको समझ आए कि जो मैं काम कर सर रहा हूँ आप मुझे गलत साबित कर दें, इसमें आप मुझे सच्चाई गलत नहीं है। साबित कर दें सर, आप मुझे गलत साबित कर दें सर, कोई इशू नहीं। और मैंने मुझे तो अभी 2-4 मिनट अभी मौका मिल सकता है, एक अब्दुल्ला बात पर यार, तो मैंने आपको गलत साबित कर दिया, आपने एक बात मेरी मान ली कि दुनिया में तमाम मुल्क को आर्मी कंट्रोल करती है। अब अगली बात आपने की कि कौन मैंने सा आपकी मुल्क बात देखते बिल्कुल हैं नहीं कि मानी, मैंने सर आपकी बात बिल्कुल नहीं ज्यादा मानी सर, मुजालम करती है अपने लोगों पर, मैंने आपकी सर बिल्कुल बात नहीं मानी सर। तो आपने फिर बताया नहीं। आप मुझे बता दें इंडिया में करती है, बताएं फिर कौन सा मुल्क है जिसको आप सर मुझे बताइए कि बिल्कुल। क्या इंडिया में पाकिस्तानी इंडियन आर्मी जो है वो हुकूमत कर रही है 70 साल से? क्या वहां पे कभी मार्शल लगा है? क्या वहां पे बिल्कुल उन्होंने अपने लोगों कंट्रोल करती है। सर आप मुझे बताइए कि वहां पे कभी मार्शल लगा है सर? आपके सामने कितना बड़ा कत्लेआम किया गया सर है आप इस मुझे सिखों का। बताइए कि अच्छा, वहां मैं पे ना आर्मी की हुकूमत है सर? मैं अब क्योंकि ना यहाँ पर बात जो है ना वो ये बात इसी तरफ जरूरी नहीं चल रही। होती। मैं देखिए रिक्वेस्ट ये इसी करूंगा वजह से बात मैं ये- कह रहा हूँ ये कि जो माहौल खराब हो कंट्रोल जाएगा, हमारी। इसका असल कुछ नहीं है इस गुफ्तगू। जी हम पाक आर्मी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते, ना सुनेंगे, ना करने अमेरिका में आज देंगे। तक मार्शल लॉ ठीक है। नहीं लगा, लेकिन बिल्कुल, हम ये- कौन कह सकता है अब्दुल्ला भाई, कि एक मिनट ठहरे। एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका को कंट्रोल नहीं करती। अब्दुल्ला भाई 1 मिनट ठहरे। देखें अपना प्रोफेसर साहब बात यह है कि ऑलरेडी जो हमारा मेन दुश्मन है सर इस जिसके लिए हम टॉपिक को लोग यहाँ मैंने पे स्टार्ट नहीं मोहतरम किया काम था कर रहे सर, हैं। मैंने इस टॉपिक को बिल्कुल सर, बात स्टार्ट तो नहीं सुनिए। किया था। हाँ जी वो सवाल हुआ था, मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं आपके नॉर्म चले जानता मैं ना हूँ। मैं एक चीज ना अभी सेट कर देता हूँ ताकि ना सारे अब उसको ना फॉलो कर प्रोफेसर साहब जिस दिन आप इस बात का जवाब लाएंगे ना कि मुल्क कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल नहीं करती, फिर अगली बात करेंगे। अभी कोई और टॉपिक जब सिद्धू ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੌਡ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ बैठ के। मेरा आपको इस ब्रॉड पर बता नहीं सकते आप। नहीं मैं इस ब्रॉड पर बात नहीं करूंगा क्योंकि ये जो जिन लोगों की ब्रॉड है वो कादियानियों पे बात कर रहे हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप ब्रॉड कर लें, एक सेकंड सर, आप ब्रॉड कर लें या आप स्पेसिस पे आ जाएं, इंशाल्लाह। भाईजान मेरी बात सुने ना, मेरी बात चले सुने। आप एक मिनट बात सुने। आप यार, इससे भी अब्दुल्ला, आसान एक मिनट काम गलती करें, कर आप लेंदे। सिद्धू जाट साहब के को यार। मैसेज कर देना कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल नहीं करती। यार, इसके लिए बहस की जरूरत ही नहीं है। अब्दुल्ला साहब मेरी आवाज आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ कि नहीं? जी जी करो। एक सारे मना कर रहे हैं, चलो कर लें, जब मर्जी ब्रॉड लगा ले, मैं आ जाऊंगा आपके पास। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ब्लड शेड है वो किन कंट्रीज में हुआ है? पाकिस्तान में हुआ है, इंडिया में हुआ है। किन लोगों ने किया और किन के साथ किया? आपके पास इस चीज का नॉलेज है कि मैं बताऊं वो भी आपको? और मेरे भाई आप पाकिस्तानी फौज कर रहे हैं, जितना खून ये यूरोपियंस ये इन्होंने एक दूसरे का बहाया, जाके इनकी तारीख तो पढ़ें। 2.5 लाख बंदा एक दिन में मार के उनके ऊपर चल के, वो हिटलर जो है जाता होता था अपने उसको वो शावर लेने, ईस्टर्न यूरोप उससे सारा खाली कर दिया था। उस वक्त वो आपको ब्लड शेल नहीं नजर आता। फिर मुनाफिकीन की बात उठाएं, क्या करते हैं आप पाकिस्तान में? वो जो बलोचिस्तान में 1500 बंदा कहता है कि जी हमें बलोचिस्तान अलहदा कर दें, उनको क्या अलहदा करने दें? सिंध के अंदर जो कत्ले गारत होता है मासूम लोगों का, उनको क्या करें? मारने दें लोगों को। मेरे भाई मैं पाकिस्तान जाता ही 2 साल बाद एक दफा हूँ, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क से प्यार करता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में ना किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट किया है, ना कभी वहां पे वोट डाला है, ठीक है, बट मैं अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं सुनता।
बिल्कुल सही हो गया। ये काम करने के लिए कादियानी ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं, और हम भी ये करना शुरू कर देंगे ना, तो ये उनका एजेंडा जो है वो पुश होगा, और जिससे हम इज्तनाब असल रखना में चाहते हैं मुझे प्रोफेसर साहब। ये पहले खलीफा साहब, पहले ये हालात बिल्कुल अच्छे थे। जब से ये पीडोफाइल 3 साल के लिए गवर्नमेंट में है और अब जेल में है और एक आंख से काना भी हो गया, उसने जो आके और ज़्यादा यूथ का दिमाग ख़राब किया ना, उस वजह से ये हालात बने हैं। देखें, बात ये है कि ये जो बहस चल रही है ना, इसका एक तो हासिल कुछ नहीं है, दूसरा इसमें हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है। अब वो प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, उनसे बहस भी हो सकती है, दलाइल भी दिए जा सकते हैं लॉजिकल, लेकिन इसका हासिल कोई नहीं है। वो अपने करते रहेंगे, हम अपने करते रहेंगे, फिर वो चूंकि ब्रॉड का वो हमारा फॉर्मेट नहीं है, तो एक तो डिस्कशन जो है ना वो बड़ी डिसरप्टेड हो जाएगी और माहौल जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था चेंज कर लें, अदरवाइज़ ये कोई ऐसी गुफ्तगू तो है नहीं कि जी हम कहें कि जी कुरान और हदीस हमारे पास मौजूद है और आप उसका इनकार कर रहे हैं। ये तो एक डॉक्टर पॉलिटिकल है, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्टर हो साहब सकता है हर देखें, बंदे का अपना, तो वो अपना रखते हैं, लेकिन हाँ जो जहाँ तक बात रही वो डॉक्टर कर रहे साहब हैं, हम उससे इख्तलाफ करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे अगर वो बयान करेंगे तो फिर हम काउंटर करेंगे, अगर हम काउंटर करेंगे फिर वो आगे से हमें काउंटर करें। ये गुफ्तगू का हासिल कुछ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था ये गुफ्तगू ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर। बाकी चलें, खैर कोई मसला नहीं है, कहीं और करनी है तो आपने कर लें, कोई मसला नहीं। आप साहब ने हवाला लगाया हुआ है, आप सब हवाला वड्डा करो जरा, थले मरजाई आए ने उन्होंने रगड़ा फेरिए जी। सही है डॉक्टर साहब। मैं ਹੁਣ सुबह तो शाम तक ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿस्तान ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ, वो ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ फलानी मंडी भी है, ये है, वो है। तो बंदा वो खुद जो है ना, ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ पर 12 साल की, 13 साल की, 11 साल की बच्ची वर्जिनिटी लूज कर जाती है और उसकी तादाद लाखों में हो। बहुत ज़बरदस्त बात की है कि आप एक जगह ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पर आप ये सब चीज़ें होती देख रहे हैं, वहाँ पर आप आवाज़ नहीं निकाल सकते, लेकिन दूसरी जगह पर आप तनकीद कर रहे हैं। किस बुनियाद पे कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आती, ये बिल्कुल नहीं बनता। बहुत वैलिड पॉइंट है अब्दुल्ला भाई, ज़बरदस्त। मुझे इजाज़त है आपको, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और मैं अफजल साहब को कह दूंगा किस दिन, अफजल साहब का मेरा नंबर भी है, कि किस दिन आपने सिद्धू साहब अगर आप सहाबा मुसलमान ही थे। मैं बात दोबारा आपकी बात को रिपीट कर रहा हूँ, बेशक सहाबा मुसलमान ही थे। ताल्लुक लाहौर से है, मेरी जंपल लाहौर की है, मैं शुद्ध पंजाबी हाँ पाए ते तो ताकत आपको कोई भाव न रहे। थैंक यू। चलें ठीक है प्रोफेसर सिद्धू साहब, जट यहाँ साहब पर हम जजों एक में तो मेरी तुसी बात ਇਹਨਾਂ ये ਨਾਲ कि हम यहाँ डिबेट पे करनी है ना, जातियात डिस्कस नहीं सिद्धू करते। जट जजों में तू ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ डिबेट करनी है ना, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। बाकी प्रोफेसर साहब बात यह है कि आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अफजल वड़ाई साहब के आप दोस्त हैं, ट्विटर से आप तशरीफ़ लाए हैं, और आप बिल्कुल अपनी ब्रॉडकास्ट ज़रूर करें, इस एजेंडा को आप पुश करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम जो ये ग्रुप बैठा है यहाँ पे, सारे हमारे भाई जितने भी बैठे हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं सारे, हमारा काम ख़त्म नबूवत पे काम करना है। हम उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं और इसी से बात करते हैं, बहुत अच्छा काम और कर रहे हैं, आज तक की हुआ बहुत अच्छा काम कर तो ये हमारी आपसे गुजारिश है कि हम इधर उधर की बातों पे नहीं जाते। मैं इंशाल्लाह आपकी स्पेसिस हाँ जी, आपकी ब्लॉग हमारा में ना तो आऊंगा ये भी, सब्जेक्ट है और ना हमारी एक्सपर्टीज है और इसके ऊपर ना। बिल्कुल इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा बात नहीं की, वो बहुत सवाल हुआ तो शुक्रिया। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं ये स्पेशली पाकिस्तान और पंजाब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को कादियानियों के बारे में पता ही नहीं है कि वो कौन लोग हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप करते रहे काम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये कोई मॉडरेटर ये शाहरुख को उठा ले, तो इस शाहरुख आ जा यार, उत्ते तेन कोई तेना बदतमीजी नहीं करेगा। आ कोई इत्ते भाई बैठे ने इन्हां नाल कर कोई इल्मी गुफ्तगू। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ?